Hi, dear students. Uh, Welcome to SU Square Physics. As promised, I am starting a course of mathematics on matrices and determinants for ISC Board Class 12th. You will get detailed contents about matrices and determinants on my YouTube channel, and you will get previous year solutions of ISC Board Class 12th also on my YouTube channel. So now we will proceed to the matrices and determinants. So now we will start with matrices. What is matrix or what are matrices? So matrix, what is a matrix? We will see what is the concept of a matrix. Suppose uh, we wish to express the information that Radha has 15 notebooks. 15 notebooks. Radha has 15 notebooks. So now we may express it as 15. इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 15 और जो नंबर इनसाइड दिस इज द number of is the number of notebooks that Radha has. And you know, this is square bracket. This is square bracket. This is square bracket. And in square bracket, we simply represent way of organizing numbers. Okay. So now we'll proceed. Now, if we want to if we want to want to express that Radha has 15 notebooks and 6 pens. So how we will represent it in square bracket? We will represent like this. 15 6 15 6. अब नाउ यहां पे क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर है 15, ये नंबर ऑफ नोटबुक है, ये नंबर ऑफ नोटबुक है दैट राधा हैज. एंड सेकेंड इज this is 6 and this is simply number of pens that Radha has. So now let us now we wish to express the information of possessions of notebooks and pens
by Radha and her two friends that are Fauzia and and Simran. Now Radha has what we know. Radha has 15 notebooks and 6 pens. Now Fauzia has Fauzia has 10 notebooks notebooks and 2 pens. And Simran has 13 notebooks notebooks and 5 pens. इसमें सिंपली हमने ये कंसिडर किया कि राधा के पास इतने नोटबुक 6 पेन्स हैं और राधा की जो दो फ्रेंड्स हैं फौजिया एंड सिमरन उसके पास इतने नोटबुक्स हैं और इतने पेन्स हैं। नाउ अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसे अरेंज करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। नाउ दिस कैन बी दिस कैन बी arranged in arranged in arranged in tabular form tabular form tabular form टेबुलर फॉर्म में इसे अरेंज करना है तो सिंपली व्हाट वी विल डू हियर, let me go on the next page because here is not much space left. So what we will do here, एक सेक्शन नेम का ले लेंगे एंड अनदर सेक्शन नोटबुक्स का, अनदर सेक्शन पेन्स का। अब इस सेक्शन में नेम लिख लिया। नेम क्या क्या थे, राधा थे, सिमरन। नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ नोटबुक्स, दिस इज द सेक्शन ऑफ नोटबुक्स एंड ये सेक्शन लास्ट, this is the section of pens. Now Radha has 15 notebooks and 6 pens. फौजिया के पास कितने पेन्स थे, 10 थे, सॉरी 10 नेटबुक्स थे एंड 2 पेन्स थे। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स थे और 5 पेन्स थे। एंड दिस कैन बी expressed as and this can be expressed as, right, now this can be expressed as expressed as expressed expressed as, this can be expressed as 15 notebooks and 6 pens, सेम वे जैसे टेबल में हमने ड्रॉ किया है, 10 2 एंड हियर 13 13 एंड 5।
So now, see, this is this is first row. This is first row, and this is second row, and this is third row. हॉरिजेंटल में जो भी हमारी एंट्रीज होते हैं उसे रो बोलते हैं, एंड वर्टिकल में जो एंट्रीज हमारी होती हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉलम. तो दिस इज फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम. This is first column, and this is second column. This is second column. Now we'll proceed to the next. Now अब सिंपल हम जस्ट चेंज करेंगे कुछ. We will change little bit. ये जो टेबुलर फॉर्म है, इसमें हम लिटिल बिट चेंज करेंगे. और चेंज या करेंगे जिस नोटबुक्स और पेन्स इस साइड हम लिखेंगे, एंड जो नेम्स है वो हम इस साइड लिखेंगे. नाउ सी हाउ I am making a little change in the tabular form of notebooks that Radha, Fauzia and Simran has. Now see, we will here write notebooks, pens, and here names. That is Radha, Fauzia and Simran. And Simran. Simran. Now राधा के पास कितने नोटबुक्स थे? 15 थे. और पेन्स कितने थे? 6 थे. फौजिया के पास 10 नोटबुक्स थे एंड 2 पेन्स थे. एंड सिमरन के पास 13 नोटबुक्स थे एंड 5 पेन्स थे. Isn't it? This was, and it can be expressed as, and it can be expressed as like this. Fifteen, 6, 10, 2, and 13, 5. Now here 15, 10, 13 are in first row. First row. And 6 to 5 are in second row. Second row. अब इस टाइम क्या हुए? नोटबुक्स जो थे, जितने राधा के पास जितने नोटबुक्स हैं, फौजिया के पास जितने नोटबुक्स हैं, वो सिमरन के पास नोटबुक्स हैं, वो सारे फर्स्ट रो में हो गए. और सेकंड में जितने पेन्स राधा, फौजिया एंड सिमरन के पास थे वो सेकंड रो में हो गए. ओके. और राधा के पास जितने नोटबुक्स थे
15 नोटबुक्स थे और राधा के पास जो 6 पेन्स थे, नोटबुक्स एंड पेन्स जो ईच पर्सन के पास है वो कॉलम में हो गए, तो ये 15 6 क्या हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया। दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम ना। और जस्ट जो फर्स्ट वाला जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, ये दिस, इसमें क्या था, 15 and 6, number of notebooks that राधा हैज एंड नंबर ऑफ पेन्स दैट राधा हैज, वो फर्स्ट रो में हो गए। सिमिलरली 10 to number of notebooks and pens that फौजिया हैज, वो सेकेंड रो में हो गए। एंड नंबर ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स दैट सिमरन हैज, वो थर्ड रो में हो गए। तो इट मीन्स में जो डाटा था उसको हमने इंटरचेंज कर दिया रो से कॉलम में। सुना। और ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट और डिस्प्ले, और डिस्प्ले ऑफ दिस काइंड, दिस काइंड is called a matrix, is called a matrix। इसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और फॉर्मली हम मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर्मली वी डिफाइन मैट्रिक्स एज, now I am writing the definition of matrix। डिफिनीशन, मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? A matrix is an, a matrix is an ordered, ordered, ordered rectangular, rectangular, rectangular array of numbers, of numbers, of numbers or functions, or functions, the numbers, the numbers or functions, the numbers or functions are called the, are called the, called the, are called the elements, elements or entries, or entries of the matrix, of the matrix, of the matrix। सुना? सी
The definition of matrix. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The number of functions are called the elements or entries of the matrix. Now see, what is a rectangular array? Rectangular array. Rectangular array. Array. The entries, the entries, the entries of a matrix are arranged in rows and columns, just like a just like a rectangle. Now we will see where we have made the entries. अब देखो ये यहां पे जो एंट्रीज है मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स की हमारी जो एंट्रीज हैं उसको जस्ट हमने अरेंज किया है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल. इट इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल. जस्ट सी. सो दिस इज अ rectangular array. Rectangular array. Now, so this is a rectangular array and ordered. Ordered means the position of the position of each entry matters. अब नाउ सी हियर, जो हमारा मैट्रिक्स था ओरिजिनल फॉर्म में, अब ये 15 6 रो में है, 10 2 सेकेंड रो में है, 13 5 थर्ड रो में है. अब हम अपने पोजीशन जो एंट्रीज है जो पोजीशन की, उसको अगर हम चेंज कर देते हैं, जस्ट जैसे यहां हमने चेंज किया. नाउ जस्ट सी. यहां पे हमने चेंज कर दिया 15 6 को, यस, कॉलम में राइट कर लिया, 10 2 को, 13 3 को, 13 and 5 को. तो जस्ट क्या हुआ यहां पे, जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जो है ऑर्डर भी चेंज हो गया है. तो जस्ट जो पोजीशन है हमारे एंट्रीज की, उसको अगर हम चेंज कर दे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. और ऑर्डर हम देखेंगे अभी डिटेल में, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है. वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ऑर्डर्ड मींस जो पोजीशन है जो हमारी एंट्रीज की मैट्रिक्स में, वो फिक्स होती हैं. और अगर हम जो हमारी एंट्रीज की पोजीशन है अगर हम उसको चेंज कर दिए तो हमारी जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो चेंज हो जाती है. अब यहां पे क्या था, जस्ट देखो, यहां पे 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में. कितने रोज हैं? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं. अब हम अब नेक्स्ट हमने क्या किया, जो रोज थे, जो रोज में एंट्रीज थी, उसको कॉलम में राइट कर ली. ओके. जो हमारे एंट्रीज की जो पोजीशन थी उसको हमने चेंज कर दिया. तो क्या हुआ फिर,
ये जो सेकंड मैट्रिक्स है दिस, यहां पे 2 रोज हो गए एंड 3 कॉलम्स हो गए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड, मीन्स जो हमारी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की, वो उनका पोजीशन जो है वो फिक्स होना चाहिए। We don't have to disturb the position of the entries of a matrix. That's it. So this was all about the matrix. Now we will see order of a matrix. Order of a matrix. Order of a matrix. अब मैट्रिक्स जो थे, अब मैट्रिक्स हैविंग, जो हमारा मैट्रिक्स था उसके कुछ रोज और कॉलम्स थे। सपोज दैट और मैट्रिक्स कि हम एम रोज और एन कॉलम्स लेते हैं, तो जस्ट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, and n columns is called a is called a is called a order m cross n or m cross n matrix. Read as m by n matrix, या तो हम उसे रीड करेंगे m क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके, या m बाई n मैट्रिक्स, और जो ऑर्डर हो गई वो m क्रॉस n हो गई। ओके, नाउ अब जो मैट्रिक्स है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को अपने हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर, बाय कैपिटल लेटर। और सपोज दैट हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी जो एंट्रीज हैं रो में -2 5 है, 0 √5 है, और 3 और 6 है रोज में एंट्री। अब जस्ट देखो कितने यहां पे रो हुए। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, एंड दिस इज थर्ड रो। तो नाउ 3 रोज हो गए जस्ट। और ऑर्डर हम जस्ट कैसे डिफाइन कर रहे थे अपनी मैट्रिक्स की? m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां कितने रो हुए? 1 रो, 2 रो एंड 3 रो। तो जस्ट हियर वी विल राइट ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कितने रोज हो गए? 3। अब देखेंगे कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, तो टोटल 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कितनी हो गई? 3 क्रॉस 2 हो गई। अब ना वी विल सी अनदर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम हमेशा डिफाइन करते हैं बाय कैपिटल लेटर, तो बी केयरफुल इन डिफाइनिंग द मैट्रिक्स। तो ना जस्ट मैं ना अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी इक्वल टू, सपोज दैट इट इज लाइक दिस, जो रोज में एंट्री है 2 + i, 3 - ½ 35
-1, 2, √3, 5 एंड 7। अब इसमें कितने रोज है? सी, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 3 रो। तो ऑर्डर कितनी हो गई इसकी? एम क्रॉस एन लिखते हैं जस्ट। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3। एंड कॉलम्स कितने हो गए? फर्स्ट, 2 एंड 3। 3 × 3। तो 3 रोज हो गए और 3 कॉलम्स भी हो गए। और इस मैट्रिक्स को हम रीड कैसे करेंगे? जस्ट M/N मैट्रिक्स मीन्स 3/3 मैट्रिक्स और 3 × 3 मैट्रिक्स। इन दिस वे जस्ट हम अपने मैट्रिक्स को रीड करते हैं ना। अब सपोज दैट एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको भी जस्ट कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स को वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स बाय ए कैपिटल लेटर। तो सपोज दैट वी हैव अनदर मैट्रिक्स कैपिटल C इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, 3 cos x, sin x + 2, sin x + 2। एंड इस वाले एंट्री को थोड़ा सा जस्ट 3 यहां हो गया एंड tan x यहां हो। अब रोज यहां कितने हो गए? दिस इज 1 + x स्क्वायर एंड 3 आर इन फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में है। एंड cos x, sin x + 2 एंड tan x ये सेकेंड रो में है। एंड 1 + x cos x ये फर्स्ट कॉलम में है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स सेकेंड कॉलम में है एंड 3 एंड tan x थर्ड कॉलम में है। तो जस्ट इसकी ऑर्डर क्या हो गई? इट्स ऑर्डर इज सिंपली, ऑर्डर हो गई सिंपली नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, तो 2 × 3 हो गई। दैट्स इट। नाउ अब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ऑर्डर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी हियर, जो हमारा मैट्रिक्स ए था, ये था ना हमारा मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर कितनी है? 3 × 2। तो एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे मैट्रिक्स ए में ही हुए 3 × 2 6। यू कैन काउंट 2 2 2 4 2 6। तो 6 हुए। अब सी बी में ऑर्डर कितनी है? 3 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हुए? 9 हो गए। एंड सी में, सी वाली मैट्रिक्स, जस दिस इज द सी मैट्रिक्स। अब सी की क्या है ऑर्डर? 2 × 3। यू कैन सी, यू कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन मैट्रिक्स सी। 1 2 3 4 5 6। 2 × 3 is equal to 6. So in this way, you can calculate total number of your entries of your matrix by order by simply multiplying number of rows and column. So this is the concept of order of a matrix. So now this is all about today's lecture. If you like my lecture, then you can subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is as U Square Physics. So you can subscribe my YouTube channel to like my video. That's all. Thank you.